Assalamu alaikum everyone. So this video is about topical solution for the topic mensuration, and we will be solving some questions from paper 2, right? So in this video we will be solving some questions like this. Includes pyramid, sectors, spheres, cubes, some composite objects, right? Starting from June 25 till let's see how long we can go, till November 16, right? So let's start at where it is. Yes, the first question we will be starting with is from June 25, paper 2 to question 21, right? So this diagram shows a solid formed by joining a cone to a hemisphere, right? The diameter of the cone is 14 centimeter and the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The total height of the solid is 24, as we can see. We need to calculate the volume of the solid. तो हमें अंदाज़ा है कि हम volume of this object is a cone plus a hemisphere. So the volume of the cone is calculated by 1/3 pi r square h, and volume of the hemisphere is half of 4/3 pi r cube, right? 4/3 pi r cube पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि आधा स्फेयर है तो इसका मतलब 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ दिस 4/3 pi r cube. So let's calculate. Do we know all the things we need? हम पहले देखें, अगर 14 डायमीटर है तो इसका जो रेडियस होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर. और फिर ये कुछ ऐसे भी 7 सेंटीमीटर होगा. और अगर ये टोटल 24 है, सो 24 माइनस 7, तो जो हाइट ऑफ द कोन है वो 24 माइनस 7 यानी कि 17 सेंटीमीटर होगी, राइट? So I guess we know that. We know the radius, we know the height. This is all we need to know, right? So 1/3 pi r square means 7 square h. H is 17. Of course, multiply हो रहा है तो 2 1s are 2, 2 2s are 4. This is 2/3 and pi r cube, pi 7 cube, right? So if you are going to do this in calculator, let me split the view. No, wait. This one. This and this, yes. So let's split the view and calculate. Yes, ये यहाँ calculate हुआ है. So pi 7 square, you can see in this calculator, the answer is 1590.6 something hoga. So correct to 3 significant figures. This is okay to write 1590, right? So the next is show that the total surface area of the solid is 712 centimeter square, correct to the nearest integer. So if we can skip that, total surface area. अब अगर इसका सरफेस एरिया आप लोग नोट कीजिए तो एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन है और एक इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर है, राइट? सो total surface area is equals to, this is pi rl plus जो टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होता है वो होता है 4 pi r स्क्वायर. सो
हेमीस्फेयर का होगा हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। वी नीड टू फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, राइट। ये स्लैंट हाइट हमको निकालनी है अभी, और ये स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हाइट और रेडियस और ये स्लैंट हाइट मिलकर बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। एंड हाइट हमको पता है कि कितनी है, हाइट हमें पता है कि 17 है, और रेडियस हमें पता है कि 7 है। तो हम ये स्क्वायर रूट ले सकते हैं। सो दिस L इज़ गोइंग टू इक्वल व्हाट? अच्छा, इसको हम स्प्लिट व्यू में चेक करते हैं। स्प्लिट व्यू में हम कैलकुलेटर भी साथ रखते हैं। तो यू सी स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो गया। अगर हम एस टी में चेक करें, सो 13√2, राइट, 13√2। सो पाई r is 7 times 13√2 plus 2 pi r square, that means 7 square, right? So 13√2 multiply by pi. So shift this this answer, pi times 7 times this plus 2 pi and 7 square, right? So this is 712.17. तो correct to the nearest integer इसको 712 ही हो जाना चाहिए, right? So proved. So this is 712 correct to the nearest integer, right? Okay, अब ये अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट क्या कहता है कि a smaller solid mathematically similar to the solid, the total surface area of the solid is 242 centimeter square. Calculate the total height of the solid. अच्छा देखिए, ये जो स्फेयर था इसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला था, और वो उसकी राउंडेड ऑफ की हुई वैल्यू जो थी वो 1590 थी, लेकिन वो उससे पहले 6 और 9 भी था, राइट। सो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट 1 का एरिया हमें पता है। हमें इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका एरिया हमें पता है, वो है 1590.69, और इसकी हाइट हमें पता है 24। इसकी हमें हाइट पता है 24। हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट का की हाइट चाहिए जो मैथमेटिकली सिमिलर है। जब सिमिलर सॉलिड हो और एरिया का रेशो हो तो वो बराबर हो जाता है एरिया 2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 इनटू लेंथ 2 अपॉन लेंथ 1 स्क्वायर, राइट। सो जो एरिया हमको चाहिए उसका जो एरिया हमें पता है वो 242 है दूसरे ऑब्जेक्ट का, और इसकी हाइट हमसे पूछी गई है। कैलकुलेट द टोटल हाइट ऑफ द स्मॉलर सॉलिड, कि इसकी हाइट बताइए, राइट। तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। हम कह सकते हैं कि जी एरिया 2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 इज़ हाइट 2 डिवाइडेड बाय हाइट 1 एंड स्क्वायर। सो एरिया 2 इज़ 242, एरिया 1 इज़ 1590.69। याद रखें, हम ये 1590 यूज़ करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि राउंड ऑफ मेंसुरेशन के टॉपिक में या इवन पूरे मैथमेटिक्स में वो लेवल्स के सिर्फ फाइनल आंसर को राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। सो ये रखेंगे, हाइट 2 हमको चाहिए, हाइट 1 गिवन है 24, इसका स्क्वायर। सो यू टेक स्क्वायर रूट, राइट, एंड देन दिस हाइट 2 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 242 डिवाइडेड बाय 1590.69। तो इसको अगर कैलकुलेटर में लिखें, तो
ये हो जाना चाहिए 24 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन 242 divided by 1590.69 and the answer is 9.36. So wait a minute, total surface area 1590 नहीं था, sorry, total surface area 712 था, my bad. So 712 was the area, 712.17, this was the area. हमने गलती से वॉल्यूम ले लिया, I'm sorry. 712.17, this is 712.17. So calculate this again. 24 multiplied by this is 242 divided by 712.17. So 13.99. 13.99, that is correct to three significant figures, equals to 14.0, right? So this is it. Hopefully ये बात आपको समझ आई होगी. चलें जी, next question, question number 4. The diagram shows a pyramid ABCV. A, B, C and V. The base of the pyramid is equilateral triangle. This is an important thing to note. Equilateral triangle ABC with side 34 centimeter. The height VO is perpendicular to the base of the pyramid. VA, VB, VC is 82. VA, VB and VC is 82. That is slant edges. Write down the number of planes of symmetry this pyramid have. अच्छा, planes of symmetry क्या होते हैं? Planes of symmetry एक ऐसी 2D शेप जो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से स्लाइस करूँ, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो ये इस pyramid के दो ऐसे पीस डेवलप करेगी जो ज्योमेट्रिकली बिल्कुल कॉन्करेंट होंगे, सेम शेप सेम साइज. मतलब इस ट्राइंगल को, इसको अगर ऐसे इस आउटलाइन पे स्लाइस किया जाए तो दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल दो ऑब्जेक्ट्स डेवलप होंगे. सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो अब इसमें कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, एक ये और एक ये, राइट. तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो इसके होंगे वो होंगे 3. फिर हमसे कहा जाता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. M इज़ द मिड पॉइंट. इसका मतलब है कि दिस 34, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये 34 है, तो इस तरफ भी 34 होगा, यहाँ भी 34 होगा, एंड देन दिस MC वुड बी हाफ बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट. तो इसका मतलब है कि MC हाफ ऑफ 34 यानी कि 17 हो जाएगा. ठीक है. एनीवे, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि शो दैट, अच्छा फिर एक और रेशो गिवन है, दैट MO रेशो OB इज़ 1:2. MO रेशो OB इज़ 1:2. MO रेशो OB इज़ 1:2. The question is, we need to find out OB. We need to show that OB is 19.6. कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो OB है वो 9.6 है. अगर OB के लिए देखें तो OB बराबर होना चाहिए किसके? OB का रेशो क्या है? 2. सो रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ. द टोटल लेंथ इज़ MB, राइट. तो अगर हमें MB पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है. हम सिर्फ MB की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हम ये फॉर्मूला हमने जो यहाँ फॉलो किया है, दैट इज़ रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ दैट इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन द MO एंड OB. सो दिस इज़ इट. तो वी नीड टू फाइंड आउट MB. तो अगर आप नोटिस करें, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है
तो यहाँ पे ये इसका एक 90 डिग्री बनेगा। एम बी जो है वो परपेंडिकुलर होगी ए सी के। सो यू सी इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब एम सी क्योंकि हमें पता है दिस इज 17, तो वी कैन फाइंड आउट एम बी, and MB will be equal to 17 under root 3, right? आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि 34 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर करना है, और स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर दैट इज 17 under root 3, राइट। सो ये हो गया एम बी। So 2/3 of 17 under root 3. So multiply this with 2 and divided by 3. So answer is 19.629. 19.6 जो ये प्रूफ करना था 629, so 19.6 correct to 3 significant figure is the right answer. So calculate the angle between edge VB and the base of the pyramid. तो हमको अब एंगल पूछा जा रहा है एज VB and the base of the pyramid. तो let's look in the diagram. ये क्या चीज़ है जो हमसे पूछी जा रही है? हमसे पूछा जा रहा है एक्चुअली एज VB and base of the triangle के दरमियान एंगल. This is the angle that we need to find out. अब क्योंकि हमें ओ बी पता चल गया है 19.62, दिस ओ बी इज 19.62 एंड वी नो दैट दिस इज अ वर्टिकल हाइट, सो दिस इज 82। तो हम एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं और ये एंगल निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला कॉस थीटा, लेट थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल, adjacent is OB, OB is 19.6, 2 divided by hypotenuse, hypotenuse is 82, so this theta is going to be cos inverse of 19.62 divided by 82. So the final answer would then be 76.14, right? Then we need to find out the volume of the pyramid. Volume of the pyramid के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम pyramid का बराबर होता है जी 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब इस सवाल में बेस एरिया क्या होगा? हम जानते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एवरी एंगल इज ऑल्सो इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। हर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है वो 60 डिग्री का होता है। और हम एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री में 1/2 AB sin C, 2 sides and the included angle between them. तो ऐसे कैलकुलेट हो सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस वुड सर्व बेस्ट क्योंकि दोनों साइड्स पता है, उनके दरमियान का एंगल पता है, तो हम बेस एरिया इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हाइट हमको पैरामिड की निकालनी पड़ेगी। दिस हाइट ऑफ द पैरामिड इज़ नॉट नोन येट, राइट। तो ये भी आसान है, हाइट ऑफ द पैरामिड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो वो कैसे निकल सकती है? या चाहे तो ये एंगल आपके पास आ चुका है, इस एंगल को यूज़ कर लीजिए, या चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 82 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस हाइट स्क्वायर प्लस ओ बी जो कि 19.62 था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो पहले इस हाइट को कैलकुलेट करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं व्यू को। ठीक है जी।
82 square minus 19.62 स्क्वायर, और जो भी आंसर आया है इसका स्क्वायर रूट, तो 79.61, दिस इज 79.61, ये हाइट आ गई। ठीक हो गया जी। 79.61 इज द हाइट। नाउ सी, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1/3। बेस एरिया इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB sin C. A is 34, B is 34, and the sine 60, and the height we just calculated 79.61. 79.61, right? So let's split the view again. So इसको लिख लेते हैं ऐसे, 79.6 multiplied by sine 60 multiplied by 34 square divided by 2 3 is 6, right? So 13281 So correct to three significant figures, this is going to be 13300, right? So coming to the next question, this is question number 6 and October November 24, page paper 2 question number 9 part B. Now see this. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें तो ये भी ठीक है. This is good, right? This would be okay. Now see, question number this. I want you to just pause the video, or I'm giving you 2 minutes to just have a look on this diagram and try to solve the part A, right? Just give me a minute. Yes, guys. So I hope आपने ट्राई किया होगा. हाँ जी. हमें गिवन क्या है? PQ are the point of a different circle. अच्छा, ये पार्ट B है किसी का, इसलिए कोई और सर्किल की बात कर रहा है. Well, we have center O. Angle of the minor sector is 82. Okay. Length of minor arc is 7.3. This is 7.3. Calculate the area of the major sector. हमको चाहिए area of the major sector. Area of the sector निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, पहले तो आप ये देख लें कि 360 minus 82. This angle is 278, right? और ये एरिया हमको चाहिए मेजर सेक्टर का, ठीक है?
So the angle, the formula is theta upon 360 into pi r square. So we need radius also. रेडियस निकालने के लिए ये दो बातें हमको दे रही है. आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. दिस इज आर्क लेंथ एंड आर्क लेंथ इज गिवन हेयर 7.3 और एंगल भी हमें पता है कि 82 है. सो 82 डिवाइडेड बाय 360 into 2 pi r we need to find out, right? And this is 7.3. So 7.3 multiply by 360 divided by 2 divided by 82 times 2 times pi, right? So 7.3 multiply with 360 and divided by 82 times 2 times pi. So this is 5.10, right? So 5.1. ये आ गया radius. And now we can easily find out the area of the major sector. Area of major sector is 278 out of 360 multiply by pi r square, which is 5.1 square. ठीक हो गया जी. So 278 divided by 360 multiply by pi multiply by 5.1 square. So this is 63.1110 to 63.1, correct to three significant figures, right? Centimeter square. Next, question number 7. Volume of the sphere is 4 upon 3 pi r cube. We know that. The diagram shows a sphere inside a cube. The sphere touches all 6 faces of the cube. The volume of the cube is 343 centimeter cube. Correct. We need to calculate the volume of the sphere. Volume of the sphere तो हमें पता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, that is radius, right? अब now see, volume of the cube is given. The volume of cube is length cube, which is 343 here, right? So करें क्या? ये जो स्फीयर इसके अंदर मौजूद है, हम जानते हैं कि स्फीयर का रेडियस ऐसे होता है. अभी this side of the sphere is touching all faces of the cube, right? So this is radius, this is also radius, means every side can be considered as 2r, right? So we can substitute this L with 2r, and this relation will give us 2 का cube 8 हो जाता है, 343, and r cube is 343 divided by 8. So we take cube root, and this r would then equal to shift cube root of 343 divided by 8. This is 3.5. Now we can easily find out the volume of the sphere inside it. So volume of the sphere is 4 upon 3 pi r cube, and r is 3.5. So 4 shift pi into 3.5 cube divided by 3, 179.59. ठीक हो गया जी. यानी इसको करेक्ट टू दी
3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें तो वो 180 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। पार्ट बी देखें जी। सॉलिड ए इज मैथमेटिकली सिमिलर टू सॉलिड बी। ये सॉलिड ए पता नहीं कोई और है शायद, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ए इज दिस एंड हाइट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बी इज दिस, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सॉलिड बी। तो ये आसान है, हम जानते हैं एक वॉल्यूम गिवन है 540, ठीक है, और एक हाइट जिसकी 540 है उसकी हाइट 15 है, एंड जो वॉल्यूम जो सॉलिड बी है दिस इज अबाउट ए, दिस इज द सॉलिड बी हैव अ वॉल्यूम 1280, और इस 1280 जिसकी हाइट है वो हमें पता करनी है। लेट्स से हाइट 2 वी नीड टू फाइंड आउट। तो वी नो दैट formula is v2 upon v1 and h2 upon h1 cube if they are mathematically similar. So let's calculate this. v2 हमारे पास 1280 है, यहाँ नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय v1 जो है वो 540 है, और h2 हमको पता करना है, h1 15 है और ये क्यूब है। सो आप ले लीजिए क्यूब रूट टू कैंसल दिस आउट, और 15 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई करेगा, सो h2 वुड देन बी, लेट्स कैलकुलेट दैट, क्यूब रूट ऑफ 1280 डिवाइडेड बाय 540, जो भी इसका आंसर आए मल्टीप्लाई विद 15, so this is going to be 20, right? The next part is we have a composite object here. The diagram shows a solid formed by joining a cone to a cylinder. The cone and the cylinder each have radius 6.3. Done. ये 6.3 इन दोनों का radius है. The slant height is 8.7. Okay. The ratio of the height of the cone and height of the cylinder is 2:3. Calculate the total surface area of the solid. Okay. अब हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड चाहिए। पहले तो ये देख लेते हैं कि दिस टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल है क्या? दिस टोटल सरफेस एरिया is includes what? First the base, which is a circle का एरिया पाई आर स्क्वायर। The next surface area is the curved surface area of the cylinder, which is 2 pi r h, and the next surface area is the curved surface area of the cone, right? जो के बराबर होता है pi r l के, right? तो this is it. अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन। हमको रेडियस तो गिवन है 6.3, दिस 6.3 वी नो दैट, सो पाई इंटू 6.3 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, आर इज 6.3, दिस एच वी डोंट नो, लेकिन उसके लिए हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर का एक रेशो गिवन है। अब हाइट ऑफ द कोन भी नहीं पता, हाइट ऑफ द कोन निकाली जा सकती है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दिस हाइट वुड देन बी स्क्वायर रूट ऑफ 8.7 स्क्वायर माइनस 6.3 स्क्वायर, जो कि आ गई 6, right? So height is not, this height is 6. अच्छा, height of the cone, let's say मैं इसको h1 का नाम दे देता हूँ, and height of the cylinder इसको h2 का नाम दे देता हूँ। Height of the cone ratio height of the cylinder is equals to 2:3, ऐसा यहाँ दे रखा है।
right? So this can be written as h1 over h2 is 2 upon 3. So h1 तो हमें पता है, h2 निकाल लेते हैं, तो h2 बराबर किसके हो जाएगा? h2 बराबर हो जाएगा h1 multiply by 3 divided by 2. This is h2, right? So h1 is 6 times 3 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 threes are 6, 3 threes are 9. So h2 is 9. तो height इसकी height हमें पता चल गई और वो है 9 प्लस पाई r का मतलब 6.3 था क्योंकि रेडियस है और slant height is 8.7. राइट, सो ये अब आप इस सम में पुट कर दीजिए. So shift pi multiply by 6.3 square plus 2 times pi times 6.3 times 9 plus shift pi into 6.3 times 8.7. So 653.1. 653.1 ये हो गया जी आपका सरफेस एरिया. Correct to 3 significant figures, 653. Right. Now come to the next composite object. This is somewhat similar to the previous, I guess. जो हमने सॉल्व किया था, हाँ ये जैसा ही है. So let's skip this question. No, we cannot escape it. इसका पार्ट भी इंटरेस्टिंग है. इसका पार्ट भी इंटरेस्टिंग है. So let's solve it. ठीक है, ये पार्ट बी का ताल्लुक वैसे उससे नहीं लग रहा, लेकिन चलें सॉल्व कर लेते हैं. देखिए, अच्छा, आई वॉन्ट एवरी वन टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, और अगर आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Let me have a water. अच्छा जी. So this question says that a solid is formed by placing a cone on the top of a hemisphere. ठीक है, top of a hemisphere, और the cone and hemisphere have a radius r. ठीक है, we can see that. Then the height of the solid is 10. We can see that. The curved surface area, the curved surface area of the hemisphere is 145. Okay. Show that r is 4.8. जो curved surface area होता है हेमिस्फेयर का, वो बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर के, और वो गिवन है 145. तो इसका मतलब है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे. सो दिस आर इज गोइंग टू बी व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 145 डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये आ गया 4.8, और ये प्रूव हो गया. ठीक हो गया. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो वॉल्यूम तो आसान होता है, आप जानते हैं. कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई स्क्वायर एच है, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो 2/3 पाई r क्यूब होगा. पहले देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें हमें पता है या नहीं. हमें ये हाइट पता चल सकती है आसानी से, क्योंकि रेडियस तो हमें पता चल गया 4.8 है. अगर 10 से माइनस किया जाए इसको, तो हमको पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ द कोन क्या है. सो ये जो आंसर हमारे पास आ चुका है, 10 माइनस दिस आंसर,
इज़ 5.196। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें, इस कैलकुलेटर में हमने जो स्टोर्ड वैल्यू थी इसकी वही यूज़ की है। ये जो 4.803 है, हमने यही स्टोर्ड वैल्यू यूज़ की है और उसको माइनस कर दिया 10 से। तो हुआ ये कि कुछ भी राउंड ऑफ नहीं हुआ। सो एनीवे ये हमारे पास हाइट आ गई। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4.803 पे स्क्वायर into height h is 5.196 plus 2/3 pi r cube, r is 4.803 पे क्यूब। ठीक हो गया जी। सो दिस 5.196 multiply by 4.803 square multiply by pi divided by 3 plus 2/3 multiply with pi multiply with 4.803 cube, and the answer is 357.58. So 357.58 मतलब 358 centimeter cube, correct to 3 significant figures. So calculate the surface area of the cone. अब surface area of the cone चाहिए, curved surface area of the cone. तो curved surface area of the cone is easy thing, वो होता है pi r l. अब L you need to find out this L also, वो जो कि Pythagoras theorem से निकलती है, length square is equals to height square plus r स्क्वायर। तो हाइट इसमें थी 5.196 स्क्वायर, रेडियस था 4.803 था ना, 4.803 स्क्वायर, और फिर इसका फाइनली आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्लैंट हाइट आएगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5.196 स्क्वायर प्लस 4.803 स्क्वायर 7.075, right? So curved surface area is pi rl. Pi r is 4.803 and the slant height is 7.07 something, 75876 ले लेते हैं। So whatever this is, multiply by 4.803 multiply by shift pi. So this is 106.767. आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं कैलकुलेटर में स्टोर्ड वैल्यू ही कैलकुलेट रख रहा हूँ पाई की, जो कैलकुलेटर में होती है, और मैक्सिमम कैलकुलेटर की मेमोरी से आंसर रिट्रीव कर रहा हूँ सो दैट आपके आंसर्स एक्यूरेट आएँ, राइट। आइए जी, इस सवाल के लिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था। Now I want you to take a screenshot of this. फिर मैं एक दफ़ा सॉल्व करूँगा तो फिर आप दोबारा अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। I want everyone to read this question first. Yes, the angle of the sector B is 20% smaller than the angle of the sector A. Okay, 20% smaller. That means this angle, theta, let's say, this is 20% smaller. That means this is 80% of the angle of the sector A. This is x. 80% of x, that means theta is 0.8x. And the radius of the sector B is 20% longer than radius of the sector A. Longer means this radius, this length, yeah, maybe radius, is 20% more, yani 120% of this y.
सो 120% का मतलब हो जाएगा 1.2y, राइट. Calculate the area of the sector B as a percentage of the area of the sector A. That means area of sector B divided by area of sector A times 100. This is what we need to find out. तो सेक्टर बी का जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए, हम जानते हैं कि एंगल यानी कि 0.8x डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 1.2 y square divided by area of the sector A, which is x upon 360 into pi y square. तो यू सी कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इसमें. क्या कैंसिल हो रहा है इसमें? दिस x कैंसल्स x, दिस 360 कैंसल्स 360, दिस पाई कैंसल्स दिस पाई, दिस y स्क्वायर विल कैंसिल y स्क्वायर. तो बचा क्या? अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100%. सो 0.8 बचा इंटू 1.2 का स्क्वायर बचा और ये 100% वाला बचा. सो दिस इज 0.8 into 1.2 square into 100. So 115.2%. Right? This is the answer. Now, I want everyone to read this. How many questions are we left with? This 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. So this video will be too lengthy then. तो फिर एक काम करते हैं, हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रोकेंगे, बल्कि यहाँ से फिर अगली वीडियो में जो है वो हम डेवलप करते हैं. सही है. सो हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे मेंसुरेशन के टॉपिकल. राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.